سب سے بڑا میں نے مشن کیا ہے کہ جو بھی علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو گنڈے ہیں ان کو پکڑیں، چھوٹوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں، بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کرپشن نیچے جانی شروع ہوگی۔ بڑے ڈاکوؤں پر ہاتھ ڈالنے سے کرپشن میں کمی آ رہی ہے، ہمیں ملک کنگال حالت میں ملا۔ وزیر اعظم عمران خان کا میاں والی میں خطاب، کہتے ہیں جو قدرتی وسائل پاکستان کے پاس ہیں، اناج مہنگا نہیں ہونا چاہیے، ہم تو دنیا کو اناج دے سکتے ہیں، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا مشن ہے۔ ادھر نجی یونیورسٹی میں خطاب کے دوران کہا کہ مشکل وقت سے انسان سیکھتا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ سرسبز و شاداب پاکستان مشن، وزیر اعظم عمران خان نے کندیا میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ 3 ارب درخت لگائے جائیں گے، چھانگا مانگا سے بھی بڑا جنگل بنے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا اللہ نے پاکستان میں 12 موسم دیے، درخت نہ لگائے تو موسمیاتی تبدیلی مستقبل تباہ کر دے گی۔ وزیر اعظم نے نجی یونیورسٹی کے طلبہ میں اسناد بھی تقسیم کیے۔ حکومت کو ڈیڈ لائنز دینے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، سندھ کے حالات دیکھیں، پنجاب میں نون لیگ نے کیا دودھ کی نہریں بہا دیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں گفتگو، بولے تحریک انصاف کو اپنی مدت پوری کرنے دیں، ہماری ٹرم پوری ہونے پر معیشت مستحکم ہوگی۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اور اتحادی ناراض ہو چکے، وفاقی حکومت اب زیادہ دن نہیں چل سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی 7 میں گفتگو، بیماری کے باوجود آصف زرداری ملک کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی آئینی اور جمہوری طریقے سے آئے گی، ساری جماعتوں سے مشاورت کر کے احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ آرمی چیف کا 4 روزہ دورہ مراکش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کی مراکش کے وزیر دفاع اور مسلح افواج کے انسپکٹر جنرل سے ملاقاتیں، رائل کالج ہائر ملٹری ایجوکیشن کا بھی دورہ۔ ملاقاتوں میں آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے اور پرامن خطے کے لیے کوشاں ہے۔ سندھ حکومت کی کراچی میں نہر خیام پر شجرکاری مہم، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، مرتضی وہاب کی شرکت، میئر وسیم اختر اور کمشنر بھی شجرکاری مہم میں شریک ہوئے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں بے نظیر پارک کے بعد نہر خیام بھی ایک مثال بننے جا رہی ہے، سب کو مل کر مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں پر آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا مراکش کا 4 روزہ سرکاری دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی مراکش کے وزیر قومی دفاع، مسلح افواج کے انسپکٹر جنرل سے ملاقاتیں، دونوں جانب سے علاقائی امن و استحکام کے امور بھی زیر غور آئیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے رائل کالج آف ہائر ملٹری ایجوکیشن کا دورہ بھی کیا، اسی پر بات کریں گے فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فیصل، آگاہ کیجئے گا، دورے کی تفصیلات کیا جاری کی گئی ہیں؟ جی بالکل، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مراکش کا 4 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ مراکش کے وزیر قومی دفاع، مسلح افواج کے انسپکٹر جنرل سے انہوں نے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ دفاعی سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی، جبکہ علاقائی امن و استحکام کے امور جو ہیں وہ بھی زیر غور آئے۔ 2 طرفہ سطح پر سیکیورٹی، مشترکہ تربیت، انسداد دہشت گردی کے امور پر جو ہے وہ باہمی تعاون پر مکمل اتفاق پایا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ماضی کے ہر چیلنج میں مراکش کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہا ہے، آئندہ بھی شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے رائل کالج آف ہائر ملٹری ایجوکیشن کا دورہ بھی کیا اور ابھرتے سیکیورٹی ماحول اور درپیش چیلنجز پر جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے خصوصاً علاقائی سلامتی کی جو صورتحال ہے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کاوشوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف صف اول کا ملک ہے، پاکستان نے انسداد دہشت گردی کی جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں، پاکستان دہشت گردی کے عالمی افریق کے خاتمے اور پرامن خطے اور دنیا کے لیے کوشاں ہے۔ جی ٹھیک ہے فیصل، آپ ہمیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے مراکش کے 4 روزہ سرکاری دورے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انگریز جو جنگل چھوڑ کر گئے وہ ہم نے تباہ کر دیے، جنگلات پر قبضے کرنے والوں کو جرمانہ نہیں جیلوں میں ڈالا جانا چاہیے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ چھوٹے چوروں کو پکڑ کر چوری ختم نہیں ہوگی، بڑے ڈاکو پر ہاتھ ڈالے تو چھوٹا ڈاکو خود ہی ڈر جاتا ہے، میرا مشن پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے۔
बिलियन ट्री सुनामी की तरफ एक और बड़ा कदम। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कुंदिया में पौधा लगाकर बड़े जंगल की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि जो जंगल अंग्रेज छोड़ कर गया था वो हम तबाह कर चुके हैं। जो जंगल अंग्रेज छोड़ के गया था, मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जंगल हम तबाह कर चुके हैं। हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं। आप में से कितनों को पता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं। 12 मौसम है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान दुनिया को अनाज दे सकता है। वजीर आजम का कहना था कि छोटे करप्ट लोगों को पकड़ा और बड़े डाकुओं को छोड़ दिया जाता रहा। हमारी हुकूमत में पहली बार हुआ है कि बड़े डाकुओं पर हाथ डाले जा रहे हैं। पंजाब में हम एक आईजी लेके आए हैं, शुएब दस्तगीर। उसका सबसे बड़ा मैंने मिशन किया है कि जो भी इलाके के बड़े बड़े डाकू गुंडे हैं उनको पकड़ें, छोटों के ऊपर हाथ ना डालें, बड़ों के ऊपर हाथ डालें। वजीर आजम का कहना था कि इस रियासत को फलाही बनना था मगर हम गलत तरफ चल पड़े। कुछ लोग अमीर हो गए, बाकी गरीब रह गए। हमारा ये फर्ज है कि सबसे पहले जो गरीब इलाके हैं, कमजोर इलाके हैं, मुल्क के वो इलाके जो पीछे रह गए हैं, ये हमारा फर्ज है कि इनके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, यहाँ लोगों को उठाया जाए ऊपर। पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाही रियासत बनना था जो कि मदीना की रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बनना था, जो हम गलत रास्ते पे चल गए। बजाय फलाही रियासत बनने के सारी रियासत में थोड़े से लोग अमीर हो गए और अवाम नीचे रह गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इस अज़्म को फिर दोहराया कि उनका मिशन पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। हुकूमत 50 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड फराहम कर चुकी। हर महीने 80,000 अफराद को बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे और ख़वातीन को खुद किफ़ालत के लिए भैंसें, गायें और मुर्गियाँ देंगे। सवाबी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के जलसे में तरकई खानदान को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। तकरीब में हल्के के एमएनए उस्मान तरकई को मदऊ नहीं किया गया और न ही हटाए गए। साबिक वज़ीर बल्दियात शहराम तरकई, उनके वालिद लियाकत तरकई और चचा मोहम्मद अली तरकई को बुलाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मुमताज़ बंगश। खैबर पख्तूनख्वा के दो अहम वजीर शहराम तरकई और मोहम्मद आतिफ को हटाने के बाद सवाबी और मर्दान में अहम शख्सियात को पार्टी में शामिल करने के लिए वजीर आला महमूद खान, वजीर दिफा परवेज खटक और स्पीकर असद कैसर मुतहरिक हो गए। सवाबी में खुदाई खिदमतगार खानदान के चश्म चिराग और मारूफ कारोबारी शख्सियत इरशाद खान को PTI में शामिल करने के लिए शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया गया, तो उस तकरीब में इस हल्के के MNA उस्मान तरकई को भी शिरकत की दावत नहीं दी गई। तकरीब में तरकई खानदान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। जलसे में साबिक वजीर शहराम तरकई आए और न ही उनके वालिद सेनेटर लियाकत तरकई को दावत दी गई। इस तरह शहराम के चचा MPA मोहम्मद अली तरकई भी गैर हाजिर रहे। सिर्फ सवाबी ही नहीं, मर्दान में भी PTI की जानिब से अवामी नेशनल पार्टी की अहम शख्सियत को पार्टी में शामिल करने के लिए राब्ते किए गए और दोनों अजला में अब एक अहम शख्सियत को ये सोचकर शामिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि अहम रहनुमाओं और साबिक वज़रा की नाराजगी की सूरत में पार्टी को नुकसान से बचाया जा सके। मुमताज़ बंगश, 92 न्यूज़, पेशावर। अपोजिशन नहीं, PTI के अपने लोग ही नाराज हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं PTI से इत्तेहादी नाराज हैं। कराची के MNAs भी PTI से नाराज हैं। लगता यह है कि ज्यादा दिन हुकूमत नहीं चल सकती। बीमारी की वजह से आसिफ जरदारी बाहर नहीं निकल सकते। महंगाई के तूफान के नीचे मुल्क के अवाम फंसे हुए हैं। कराची के MNAs भी नाराज हैं और MPs भी नाराज हैं। लगता यह है कि ये हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चल सकती, ऐसा कहना है 7 में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का। उनका मजीद ये भी कहना था कि बीमारी की वजह से आसिफ अली जरदारी बाहर नहीं निकल सकते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुखालफीन को खरी खरी सुना दी। कहते हैं कि जो डेडलाइंस दे रहे हैं अपने गिरेबान में झांकें। क्या नून लीग के दौर में दूध और शहद की नहरें बह गईं? सिंध के हालात जाकर भी देखें। तहरीक इंसाफ को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए, हमारा टर्म पूरा होगा और मईशत मुस्तहकम होगी। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान की मईशत पर खुशगवार असर पड़ेगा। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी जानिए। डेडलाइंस दे रहे हैं, उनके अपने गिरेबान में झांकें तो सूरत हाल क्या है। आज 10 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है।
जरा सिंध का चक्कर तो लगाएं। एक पंजाब के, मैं समझता हूं, सहाफियों का एक वफद जो है उसे सिंध का दौरा करना चाहिए, खास तौर पे इंटीरियर सिंध का आप दौरा करें और वहां जाके देखें कि वहां गवर्नेंस का क्या हाल है। 2013 में नून लीग की हुकूमत मुंतखब हुई, उन्हें पूरे 5 साल मुकम्मल करने का मौका मिला। ठीक, क्या उन 5 सालों में सब शहद और दूध की नहरें बहनी शुरू हो गई थी? 3 दहाइयों से हुकूमत की, मुसलसल उनकी हुकूमत जारी रही। आज देखना है कि क्या पंजाब के सारे मसाइल हल हो गए थे उन 30 साल उनके नून लीग के दौर में? ऐसा नहीं हुआ था। हमारा जब टेन्योर पूरा होगा तो इंशाअल्लाह मईशत मुस्तहकम भी सिर्फ होगी, जो आप हो चुकी है। आपका रुपया मुस्तहकम हो चुका है, आपकी मार्केट्स मुस्तहकम हो चुकी हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में ग्रोथ जो ज़रूरी है गुर्बत को कम करने के लिए और अपना रोजगार पैदा करने के लिए, उसमें इजाफा होगा। काम काम और सिर्फ काम, अहलकार करेंगे काम, साहब करते हैं आराम। वफाकी पुलिस अहलकार थक गए हैं। सिक्योरिटी डिवीजन में तैनात अहलकारों ने अलम बगावत बुलंद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अहलकारों ने वज़ीर आज़म पोर्टल पर 12 घंटे ड्यूटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। कहा कि 12 घंटे की ड्यूटी से ज़हनी मरीज बन गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ बिलाल अफरीदी से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों की जानिब से पीएम पोर्टल पे एक कंप्लेन दर्ज की गई है और उसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी डिवीजन में तैनात एहलकारों से 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, जबकि 12 घंटे ड्यूटी के बाद इनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने अहल खाना और अपने बच्चों को भी टाइम दे सके या अपने लिए कोई वक्त निकाल सके, और इसकी वजह से वो जहनी अमराज का भी जो है वो शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से जो हमने तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस से जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से ये जो मसाइल हैं इस्लामाबाद पुलिस को दरपेश है और उसकी जो बड़ी वजह है वो नफरी का मुकम्मल ना होना है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि हाल ही में 1200 एहलकार जो है वो भर्ती किए हैं और इन 1200 एहलकारों की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद इनको मुख्तलिफ डिवीजन में तैनात किया जाएगा और इनकी तैनाती के बाद मुमकिन तौर पर काफ़ी हद तक जो टाइमिंग्स का इशू है वो बेहतर हो जाएगा। ताहम इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि अभी तक ठीक है बिलाल, आप हमें इस हवाले से बता रहे हैं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया है साबिक आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब ने। आईजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा रिक्रूटमेंट के वक्त जॉब रिक्वायरमेंट में क्या बताया जाता है कि कितने घंटे आपको काम करना होगा, और क्या ये ह्यूमनली मुमकिन है कि हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे काम किया जाए और फिर कारकर्दगी भी तसल्ली बख्श रहे? जी, हफ्ते में 6 दिन नहीं बल्कि हफ्ते में 7 दिन ही 12 घंटे ड्यूटी की जाती है, और महीने में बस किसी को 2-3 छुट्टियां मिल गई तो मिल गई। ईद, त्यौहार और जितने भी ऐसी सरकारी छुट्टियां होती हैं इन मौकों पर, ये भी बदकिस्मती से पुलिस वालों को नहीं मिलती, बल्कि ऐसे अयाम में उनकी ड्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये 12 घंटे की ड्यूटी सिक्योरिटी डिवीजन में नहीं, बल्कि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी कर रहे हैं, जलसे जुलूसों पर हैं, या जो हमारी एंटी टेररिस्ट फोर्स जिसे CTD कह लें वो है, वो भी इसी तरह 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। बुनियादी वजह मेरा ख्याल ये है कि हाँ, जो आपने पूछा कि क्या ये वाकई ऐसा है कि कितने घंटे होने चाहिए ड्यूटी के, या क्या इन्हें बताया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यूटी जो है वही हफ्ते में जो है तकरीबन 48 आवर्स जो का सिस्टम है, और पुलिस के साथ ये बड़ी ज्यादती है। आप देखें कि जिन रेंजर्स वालों के साथ मिलकर वो इस्लामाबाद में ड्यूटी देते हैं, उनकी ड्यूटी 8 घंटे से ज्यादा नहीं होती, और जबकि उन्हीं के साथ ड्यूटी करने वाला 12 घंटे पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा है। रेंजर्स वालों को और सहूलतें भी मिल जाती हैं, उन्हें वीकली छुट्टी भी मिलती है, उनको खाना भी उनकी जॉब प्लेस पर ही। नहीं तो ताहिर आलम साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये ज्यादा ड्यूटी करते हैं, क्या कुछ ओवर टाइम मिलता है, कुछ अलग मरात इनको दी जाती है? नहीं, कतई ऐसा नहीं है, बल्कि कोई ओवर टाइम नहीं है, बल्कि इस 12 घंटे को आप 14 घंटे में तब्दील करें, क्योंकि घर से पैदल निकलना, फिर किसी जगह से लिफ्ट लेना, और फिर ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचना, फिर इसी तरह ड्यूटी खत्म करके अपने घर वापस पहुंचना, तो ये 14 नहीं तो ताहिर आलम साहब, ये फरमा दीजिएगा फिर हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि कारकर्दगी बहुत अच्छी होगी, तसल्ली बख्श होगी और बेहतरीन जो है काम कर रहे होंगे ये अहलकार? डेफिनेटली इतनी ज्यादा ड्यूटी
लंबी ड्यूटी की वजह से एहलकार जो है अलर्ट होकर ड्यूटी नहीं करते, उनकी जो दिलचस्पी है ड्यूटी में वो खत्म हो जाती है, जस्ट खानापुरी के लिए खड़े होते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए बेहतर होगा, एक तो ये होता है कि रोजाना इस्लामाबाद पुलिस के 2-3 मुलाजिम जो हैं वो रिटायर हो रहे होते हैं, तो ये साल 2-2 साल हो जाते हैं रिटायर जो जवान हो जाते हैं, उनकी जगह पर नई भर्ती नहीं की जाती। और मेरा ख्याल है कि साल पहले ही भर्ती कर लेनी चाहिए जिन्होंने आइंदा 1 साल में रिटायर होना है, क्योंकि ट्रेनिंग के अमल में और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे अभी आपके जो रिपोर्टर बता रहे थे कि जो 1200 हैं उनकी अभी ट्रेनिंग नहीं मुकम्मल हुई, तो ये अगर उन्हें पहले ही भर्ती कर लिया जाता, जब ये वैकेंसीज खाली हो रही थी, तो ज्यादा बेहतर होना था और अब तक मुकम्मल हो जाना था। इसीलिए जी ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, पहले ही रिक्रूटमेंट कर लेनी चाहिए ताकि ट्रेनिंग जो है वो पूरी हो रही हो, वहाँ से एक जवान अगर रिटायर हो रहा है तो दूसरा भर्ती हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर आलम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल आफरीदी, आपने हमें इस्लामाबाद से आगाह किया, आपका ही बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए नए कवानीन। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हुंडी या हवाला से 5 करोड़ से ज़ायद रकम की मुंतकली मुआशी दहशत गर्दी तस्वुर होगी। रकम मुंतकली में मुआवन अफराद शरीक जुर्म करार पाएंगे। ऐसे अफराद को वफाकी और होम सेक्रेटरी दाखिला की सिफारिश पर गिरफ्तार किया जाएगा। मुल्ज़मान की जायदादें बहक़ सरकार तहवील में ली जा सकेंगी। इसी पर बात करेंगे, इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकराम, ये नए कवानीन क्या हैं, बताइएगा। जी, FATF ने कहा है कि पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हुंडी और हवाले के जरिए ना जाए। इसको रोकने के लिए कवानीन बनाने की जरूरत थी, तो वो कवानीन बन गए हैं। अब वो कवानीन असेंबली से पास कराए जाएंगे पार्लियामेंट से, और उसके बाद ये लागू हो जाएंगे। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा जो भी हवाला और हुंडी के जरिए भेजेगा और वो ट्रैक हो जाएगा तो उस पर केस चलेगा। जो चीफ सेक्रेटरी है किसी सूबे का या वफाक में जो दाखिला सेक्रेटरी है, वो उसकी सिफारिश पे उसको गिरफ्तार भी किया जा सकेगा, उस पर मुकदमा भी चलेगा, उस पर JIT भी बनेगी और उसके बाद उसको सजा दी जाएगी। जी ठीक है, नए कवानीन के हवाले से आपने बताया। इकराम होती, आपका बहुत शुक्रिया। मेयर लंदन सादिक खान ने भी 60 सेकंड चैलेंज कबूल करते हुए इस पर अमल कर दिखाया है। उन्होंने 60 सेकंड्स में अपनी कारकर्दगी के तमाम नुमाया पहलुओं पर रोशनी डाली, जिसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। आप भी देखिए। I've got 60 seconds to list my top achievements as mayor. So let's go. Making commuting more affordable for millions of Londoners. Introducing the Hopper bus fare and freezing TfL fares for 4 years. Opening the night tube and overground. Tackling London's polluted air through the world's first ultra-low emission zone. Planted over 250,000 trees, more than the previous mayor planted in 8 years. Cleaning up our taxis and buses. Tripling the amount of protected cycle lanes. Started building more council homes than in any year since 1984. Ditched the dodgy definition of an affordable home. Broken the record for 3 years in a row for the highest number of genuine affordable homes begun. Given tenants the right to vote on estate regeneration and produced plans for introducing rent controls. Been tough on crime and tough on its causes, investing £70 million to create more opportunities for young Londoners. Funding the Met Police Violent Crime Task Force, who removed thousands of criminals from our streets. Funding 1,300 extra police officers for London. Providing legal advice for our city's EU citizens, and always standing up for London's values, whether against Donald Trump, Boris Johnson or anyone else. I've run out of time, but if you want to see more real action for our city, remember to vote Labour on the 7th of May. ब्रेक्सिट के बाद बड़ी तब्दीली। मार्च से बरतानवी पासपोर्ट 32 साल बाद दोबारा नीले रंग का हो जाएगा। 1988 के बाद रिवायती नीले रंग का पासपोर्ट पहली बार जारी होगा, जबकि बरगंडी पासपोर्ट रखने वाले अपने पासपोर्ट की मयाद खत्म होने तक उसका इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेक्सिट के बाद पहली बड़ी तब्दीली। मार्च से बरतानवी पासपोर्ट 32 साल बाद दोबारा नीले रंग का हो जाएगा। 31 जनवरी को बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन को खैराबाद कहा तो बरगंडी पासपोर्ट की जगह नीले रंग का पासपोर्ट लाने का फैसला भी सुना दिया। पहले नए पासपोर्ट मार्च के अवाइल में जारी कर दिए जाएंगे, जबकि 2020 के वक्त से तमाम नए पासपोर्ट नीले हो जाएंगे।
रंग के साथ साथ बरतानवी पासपोर्ट के सरवर्क पर इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के फूलों की निशानियां भी प्रिंट होंगी। नया पासपोर्ट अब तक का सबसे ज्यादा तकनीकी और जदीद तरीन पासपोर्ट होगा, जिसमें पॉलीकार्बोनेट डाटा पेज समेत नई और जदीद तरीन हिफाजती खसूसियात शामिल की जाएंगे। बरतानिया में तमाम बरतानवी पासपोर्ट होल्डर्स की जाती तफसीलात और तस्वीर के साथ जाती कवायद भी बनाए जाएंगे ताकि किसी का जाती डाटा मुल्क से बाहर ना जा सके। नया पासपोर्ट 34 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। बरतानिया की नई इमिग्रेशन पॉलिसी में पॉइंट सिस्टम से एशियाई लोग ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। माहिर कानून रियाज गुल ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। हमारे साथ लंदन में माहिर कानून बैरिस्टर रियाज गुल साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो ब्रेक्सिट के बाद इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है, इससे इमिग्रेंट्स को कितना फ़ायदा होगा? पहली बात तो ये है कि 31 जनवरी को ब्रेक्सिट साइन हो गया और ये 47 ईयर्स की रफाकत के बाद इनकी ब्रेक्सिट हुआ है। अब क्योंकि जब ये अलहदगी हुई है तो यूके ने गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अभी जो सबसे पहली पॉलिसी ये बनाई गई है कि जितने भी लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बड़े सारे अपॉर्चुनिटी होंगी, लेकिन साथ ही साथ अभी 20 फरवरी को, जो कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो कानून बनाया गया वो एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगी या वो इफेक्ट होगा वो 1 जनवरी 2021 से होगा। लेकिन इनमें से 4-5 चीज़ें मोटी मोटी हैं। नंबर 1 जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो लोग प्रोफेशनल लाइकली नर्सेज होंगे या नर्सेज हैं या एजुकेशन में टीचिंग होगा, इन 2 प्रोफेशन को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। नंबर 1 इनकी शॉर्टेज है, ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल हैं, और दूसरा ये किया जा रहा है कि जब पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा तो उसके उन्होंने 70 पॉइंट्स लेने होंगे आपने। उन्होंने बताया कि आपको अगर आपकी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं 20 आते हैं, आपका जॉब लेफ्ट ऑफर होगा 20 होंगे, इंग्लिश के 10 होंगे, SSLE के 20 होंगे। तो ये एक बहुत सारा मेरे ख्याल में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द इमिग्रेंट टू कम इन द यूके कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है आप यूके के अंदर आएँ, अपने को यहाँ पे सर्व करें। और ये एक पॉइंट पे सिस्टम होगा। पहले HSM भी होता था आज से 10 साल पहले, अब दोबारा पॉलिसी आई है। इसी तरीके से बहुत सारी और पॉलिसी जाने जा रही हैं, लेकिन मेनली जो कहा जाए कि 2 फील्ड, एक प्रोफेशनल्स के लिए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉलिसी आने जा रही है कि जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट जून के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 1 साल का कोर्स करेंगे, मास्टर करेंगे या PhD का कोर्स करेंगे, तो उनके पास 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क होगा कि उनके पास 2 साल होंगे कि उनके अंदर। गुल साहब से पूछना चाहता हूँ कि इसमें नई पॉलिसी आई है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिसकी 25,600 से कम सैलरी होगी वो बरतानिया में नहीं आ सकेगा। इसका क्या मतलब है? नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो बनाया जा रहा है। पॉलिसी ये कह रही है कि उनका थ्रेशोल्ड 25,000 रखा है, लेकिन कहा कि अगर 25 से कम होगा लेकिन 20,600 प्लस होगी तो तब भी वो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उसको फिर अपनी इनकम ज़्यादा शो करनी पड़ेगी। उन्होंने एक ये कैटेगरी बनाई है विद पॉइंट बेस्ड सिस्टम, लेकिन ये है कि कम से कम 20,000 प्लस आपकी सैलरी होनी चाहिए। बाकी तमाम रिकॉर्ड पूरी करते हुए आप करोगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा यहाँ। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। इस्तांबुल में 9वें इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से सूफी स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमा कराम का कहना था कि मिल्लत इस्लामिया को तफरीक से बचकर तहकीक और तसव्वुफ की मदद से इस्लामी तालीमात को आम करना होगा। तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में 9वीं सालाना बैनुल अक़वामी सूफी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दारुल इस्लाम कॉलेज तुर्की और एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल सूफी स्कॉलर्स के ज़ेरे एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। तसव्वुफ मुसलमानों की जरूरत के उन्वान से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से दारुल इस्लाम कॉलेज तुर्की के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद इमरान अल हदीद, बांग्लादेश के शेख अल तरीक सैफुद्दीन कादरी, भारत से चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन सजादा नशीन, अजमेर शरीफ हाजी अहमद सुलेमान, सोमालिया से उलमा कौंसिल के सदर शेख मोहम्मद अल बारी, इराक से प्रोफेसर डॉक्टर हसन खालिद और दीगर उलमा इकराम ने खिताब किया। तुर्क शहर इस्तांबुल में शहीद दाबोश इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौंसल जनरल बांग्लादेश और हेड शोबा उर्दू इस्तांबुल यूनिवर्सिटी डॉक्टर खलील तोकार ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में।
तुर्की के शहर इस्तांबुल में शहीद दाबोश इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के हवाले से बांग्लादेशी कौंसलेट की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बांग्लादेश के कौंसल जनरल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में मुकर्रीन ने बांग्लादेश की मादरी जुबान बंगाली पर भी इजहार ख्याल किया। शोबा फारसी के प्रोफेसर डॉक्टर अली गुजेल योज ने न सिर्फ बंगाली जुबान बल्कि तमाम मादरी जुबानों की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब में शरीक बांग्लादेश का दौरा करके आने वाले तुर्क मेहमानों ने अपने तजुर्बात से हाज़रीन को आगाह किया और तुर्की और बांग्लादेश के दोस्ताना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। तकरीब में यूनिवर्सिटियों के उस्तातिज़ा और बांग्लादेश के साथ कारोबार करने वाले सरमायाकारों ने भी भरपूर शिरकत की। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की। तुर्की के शहर अंतालिया में बैनुल-अक़वामी थर्ड एथनो स्पोर्ट फोरम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत 49 ममालिक के नुमाइंदों और यूथ के वुज़रा ने शिरकत की। फोरम का मज़ीद अहवाल जानते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। तुर्की के शहर अंतालिया में बैनुल-अक़वामी थर्ड एथनो स्पोर्ट फोरम में वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने शिरकत की। उन्होंने फोरम से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में खेलों को हर फोरम पर प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने पाकिस्तान में होने वाले शंदूर पोलो फेस्टिवल में तुर्क वुज़रा को शिरकत की दावत भी दी। पोलो फेस्टिवल का इनकाद पाकिस्तान में रवां बरस जुलाई में किया जाएगा। फहमीदा मिर्जा ने तुर्क वज़ीर खेल के साथ मुलाकात भी की और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। दौरान मुलाकात दोनों ममालिक के माबैन यूथ एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामों पर दस्तखत भी हुए और इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि खेलों के हवाले से होने वाले मुआहिदों पर जल्द अमल दरामद किया जाएगा। बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में सालाना मेला सकाफती रंगीनियों के साथ जारी है। ख़वातीन के लिए खुसूसी शो का एहतमाम किया गया, जबकि सकाफती स्टॉल्स शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। कोयटा से देखते हैं कफ़ायत अली की ये रिपोर्ट। सालाना कदीम सिब्बी मेला भरपूर रंगीनियों और रानाइयों के साथ जारी है। ख़वातीन के खसूसी रोज पर लेडीज शो का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर नेज़ाबाजी और फ्लावर शो का एहतमाम किया गया। ये बहुत अच्छा और मैनेज प्रोग्राम है। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छा फ्लावर शो पेश किया। इन प्रोग्राम्स की वजह से आने वाली नस्लों को बेहतर तरबियत और तंजीम मिलती है। मेले में चारों सूबों के सकाफती स्टॉल्स पर भी ख़वातीन की बड़ी तादाद दिलचस्पी लेती नजर आई। इस मौके पर सकाफती शो पेश किया गया, जिसमें सकाफती धुनों पर रक्स ने समा बांध दिया। मेले में आके बचपन से हम देख रहे थे, इसमें जो है देख के आके खुशी जो बचपन में होती थी वही खुशी आज भी महसूस हो रही है मेले में बच्चों को देख के। मेले में मुल्क भर से आए जानवरों की नुमाइश भी की गई, जिसमें भागनाड़ी बैल, ऊंट और भेड़ बकरियां खास तौर पर शुरका की तवज्जो का मरकज रहे। मेला 23 फरवरी तक जारी रहेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सईदुद्दीन के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।